अटैच है। ठीक है, कंटिन्यू करिए आप। ओके, यू कैन कैरी ऑन नाउ। आप देख लीजिए। यस, अच्छा, यहाँ से कुछ चेंज करना पड़ता है शायद, एक बार वो करके देखो। क्या नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, कुछ चेंज करना पड़ता है। एक मिनट, तो HDMI से कुछ चेंज करना पड़ता है। जितेंद्र सर को वही लाइट अरे तो उससे दोनों स्विच कनेक्ट है ना। अरे लाइट ऑन हो जाता है। अरे यार 2 वायर थे इसमें। चाचा का पंखा ऑन कर दो, आएगा तो बंद कर दो। साइड नारियल ऑन करना है। ऑन करना, लाइट ऑन हो जा रहा है। हाँ अभी ऑन कर देना, अभी चालू कर, जब वो तो बंद कर दूंगा। बहुत गर्मी लगा। क्या हुआ है? सेकंड चल रहा है। हमने क्या गार्ड सेकंड गार्ड आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं क्या? वहाँ आपके पास है, कर दीजिए ऐसे ही। ये सेकंड चल रहा था वो तो नहीं हो रहा ना। हाँ नहीं करेक्ट वही से कर लो जिसका जो राउंड है। लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑन कर दो। ठीक है, पहले यूज कराइए एक साथ और फिर आप स्टार्ट करो। A very warm good morning to all of you. My name is Abhishek Mehta and I'm here to represent my team. And my team members are Faisal, Sahil, and Ashish. And my topic is bureaucratic management. I would like to invite Sahil to introduce the bureaucratic management. Good morning, all of you. Myself, Sahil. I am here to introduce about bureaucratic management. The theory is known as bureaucratic theory of management. It's also known as Weber theory. Bureaucratic management developed by a general socialist, Max Weber. Max Weber was born on 21 April 1864. He completed his PhD from Lilian University, Germany. Thank you. Bureaucratic management.
Bureaucracy is an administrative system which is designed to accomplish large-scale administrative tasks by systematically coordinating the work of many individuals. And they were stated that the bureaucratic type of power is the ideal one. Now let's talk about features of the bureaucratic management. The first division of work. Because in this system, the organization has a lot of work divided on the basis of specialization. Take the advantage of division of labor, and each department of the organization has a specific area of competence. Second, hierarchy of authority. Weber stated that there should be hierarchy of positions in the organization. Hierarchy is a system of organizations hierarchy is a system of organizations of positioning various positions in descending order from top to bottom of the organization. In bureaucratic management, the different organizations have different organizations third system of rules. Bureaucratic management is based on proper rules and regulations. Because these rules and regulations are equally followed by the every members and job every members and organization of the organizations, and it helps with proper management. Fourth, in-person relationship. In bureaucratic management, relationships among individuals are governed through the system of fifth point, that is official record. Proper official records are maintained in the organizations. These records, because the decisions and the activities of the organizations, are formally recorded. These and uses for future reference. Proper filling system is maintained. Of the organizations, and these records act as an encyclopedia for the organization. Thank you. And further, my friend Faisal will introduce about the advantages of bureaucratic management. Good morning, my name is Faisal. I'm same topic. Advantage of bureaucratic management. First point, that is the rules and the procedure are decided and followed by employees, and it's a help of proper management. Second point, there is no overlooking of job and work as the duties and responsibility of each job and performance clearly defined. Third point, in this system, the selection process and promotion procedure are based on merit as the result. Fourth point, the division of labor help in improving the performance and explore continuously. Thank you. As my friend Faisal tell about the advantages of bureaucratic management, I want to add one more point, that the work of the organizations does not suffer due to leaving of any employer. And further, the disadvantages of bureaucratic management, my friend Mayank will tell about it. Good morning, everyone. My name is Asif sir, and I'm going to continue the subtopic disadvantage of bureaucracy. First of all, rigidity. Rigidity is like a iron plate, and then goal displacement. Goal displacement means that you do not have able to show your creativity in any organization. And third point is paperwork. Lots of paperwork given to employees, and red tape. Red tape and paperwork are interconnected because all of those lots of thank you. Thank you. Thank you.
Abhishek Mehta 40 or 40. 40. 40. 81. 11 ma'am. 56, ma'am. 56. 11 Ashish no ma'am मैं घर का नहीं मैं एक साथ नाम आशीष झा और ओके बैच वेल ट्राइड, लेकिन थोड़ी और मेहनत करनी थी, ठीक है ना। होमवर्क कम हुआ था थोड़ा आप लोगों का, ये लग रहा था, ठीक है। छोटा छोटा सा टॉपिक इसीलिए दिया था आप लोगों को कि छोटा छोटा सा टॉपिक है, पूरा एक इवोल्यूशन नहीं करना किसी को, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन किसी को नहीं करना। उसके अंदर भी मैंने ब्रेक करके दिया था टॉपिक की, प्रोसेस है या फीचर्स है या प्रिंसिपल है, कुछ आपको एक ही चीज कवर करना है, सब कुछ कवर नहीं करना है आपको। तो आप कर सकते थे एक टॉपिक की तैयारी तो अच्छे से। क्लास प्लीज बी अटेंटिव, आपका ही फीडबैक में बता रही हूँ कि आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, राइट? हो सकती थी। अभिषेक, आर यू सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस? आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज एटलीस्ट यू ट्राई। आपने ये नहीं कहा कि होली के बाद नहीं मैम, अभी नहीं मैम, कल नहीं मैम, ग्रुप मेंबर नहीं है, ये सारे एक्सक्यूजेस नहीं दिए। एटलीस्ट यू ट्राइड, दैट्स अ गुड थिंग, राइट? आप कोशिश किए या, लेकिन थोड़ा होमवर्क कम था, राइट? होमवर्क आपको और अच्छे से करके आना चाहिए था, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपका डे होता है, राइट? इट्स योर डे। आप कैसे प्रेजेंट करेंगे ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। कभी कभी पहली बार गलती होती है, लेकिन आप जितना ज्यादा होमवर्क करके आएंगे, यानी जितना अच्छे से तैयारी करके आएंगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अभी तो मैंने कहा था क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आपके ग्रुप से क्वेश्चंस पूछने वाला हालत था, राइट? बिकॉज यू पीपल आर मिसिंग आउट सो मेनी थिंग्स, राइट? बैठ जाइए, कोई बात नहीं, स्टिल वेल ट्राइड। अगली बार से थोड़ा और मेहनत करके आइएगा। ओके, मैं इससे पहले क्या पढ़ा रही थी अभी? हाँ ठीक है, मैंने आपको प्री साइंटिफिक एरा, मनीष क्लियर हुआ? ठीक है। मैंने ये भी बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए कि किसका नाम किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एफडब्ल्यू टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट हो चुका है क्या? ठीक है। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करें। मैं थोड़ा सा पढ़ाई देती हूँ, अटेंडेंस ले लेंगे बाद में। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की अगर बात करें हम लोग, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में जो इंपॉर्टेंट है, किसने दिया एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल, ठीक है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। इन्होंने जो 6 या 5, जो भी कह दो आप, 5 और 6 जो मैनेजमेंट फंक्शन है वो भी इन्होंने ही दिया है। ये तो मालूम है आप लोगों को, जैसे प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हमने पढ़ा है, दैट इज आल्सो गिवन बाय हेनरी फ्योल। एंड देन दिस 14 प्रिंसिपल, जिसमें क्या क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर, आप लोग कोशिश करिए, division of labor, मार्कर ही छूट गया है, responsibility and authority, unity of command. टाइम तो नहीं, जाओ दौड़ के कोई ले आओ, मेरे स्टाफ रूम में मेरे बैग में होगा, या किसी से मांग लेना तब तक। यहाँ मैम है, उनके पास अगर होगा मार्कर तो ले लेना, आकांक्षा मैम है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग गिनवाइए, ठीक है ना। 14 में अगर आप लोगों ने 7 भी गिनवा दिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क, यस, 1। Authority and responsibility, discipline, डिसिप्लिन, ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 5 हो चुका। unity of direction, unity of order, ठीक है, 6 हो चुका। इक्विटी, इक्विटी, यस, इक्वालिटी की बात करते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन, यस। ऑर्डर, वेरी गुड। रेम्यूनरेशन, यस। मनीष, तुम काम, subordination of Yes. Scalar chain, very good, very good. Scalar chain is the one of the principle. And then subordinate centralization, and equity हो apply to चुका, individual and centralization भी एक पार्ट है, डिसिप्लिन हो चुका, ऑर्डर भी हो चुका, यानी ऑलमोस्ट subordination of individual to general interest. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, बस ये रह गया था। बाकी सब हमने
अभी अभी आप लोगों ने सब कर लिया, राइट? उसको बेकार ही दोहराया पेंसिल लेने मार्कर लाने के लिए। कोई बात नहीं, इसमें से मैं एक एक टर्म फिर से डिफाइन कर देती हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क मालूम है आप लोगों को? डिवाइड वर्क, क्लास, बैक बेंचर्स, प्लीज बिहेव। मैं रिवीजन करवा रही हूँ, आपको कुछ पूछना है? ठीक है ना? तो मैं भी रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है? ओके, सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क बताया मैंने, थैंक यू। डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड वर्क इनटू सिंपलर टास्क, राइट? डिवाइड वर्क इनटू simpler task and then assign those part of task to them who is more capable in performing that duty. Simple है division of work, हर Ma'am, जगह मतलब- यही explanation होगा। division of work करके क्या होता है? तो आपको एलोकेशन करना एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ आइए, एम्प्लॉयर। जिसको हमने स्पेशलाइजेशन बोला, राइट? राइट, स्पेशलाइजेशन आता है, एक्सपर्टाइज आता है, राइट? काम करना सिंपल हो जाता है। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी सिंपल है। हर एक हायरार्की लेवल को कुछ टास्क दिया जाता है और जितना बड़ा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी बड़ी उनकी जिम्मेदारी, उसी मुकाबले उनको ऑथोरिटी यानी पावर कह सकते हैं आप। although power is not formal word, मैं ये बता चुकी हूँ, लेकिन उनको पावर या उनको फ्रीडम दिया जाता है कि अपनी ऑथोरिटी को यूज करके आप उस टास्क को परफॉर्म करिए। ये वेल डिफाइंड होता है, यानी नो ओवरलैपिंग, नो ओमिशन, नो डिलीशन, ठीक है ना? कभी ऐसा नहीं हो कि दो आदमी एक ही काम को करने में बिजी है, और ना ही ऐसा होता है कि कोई एक टास्क हो नहीं क्योंकि आपको लगे कि कोई और कर रहा है और किसी और को लगे कि कोई और कर रहा है। होता है ना कभी कभी जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होता वहां पे, इसीलिए यहाँ पे वेल डिफाइंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ लेंगे। डिसिप्लिन, आप लोगों से ज्यादा बेहतर इस पॉइंट को और कौन समझ सकता है, ठीक है ना? हाउ इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन इज, राइट? बिना डिसिप्लिन के क्लास में 50 बच्चे को हम पढ़ा नहीं सकते, समझा नहीं सकते। ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ 500 5000 एम्प्लॉय होते हैं वहाँ कैसे काम करेंगे? तो डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है, और इस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए दो चीजें, पॉजिटिव मोटिवेशन और निगेटिव मोटिवेशन। ऐसे मेरा अभी तक आप लोगों से जब तक इनकाउंटर नहीं हुआ था तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि इट विल वर्क, ठीक है ना, ये वर्क करता है, राइट? मेरा यही बिलीफ है, अभी भी है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब प्यार से बोलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, मैम कोई बैठा है, बैग है यहाँ पे, कोई बाहर गई है, राइट? यही सब बोला गया था ना अदिति, राइट? एंड जब ये होता है, ठीक है ना, यानी जब डांट लगती है, ठीक है ना, कुछ आपको फियर होता है, देन यू विल मूव ऑन, राइट? तो लेकिन मुझे ऐसे अभी भी लगता है कि ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला होता है, यही चलता है लॉन्ग लास्टिंग। नाउ यू चूज कि आपको क्या पसंद है, वो डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी ये दोनों चीज है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट लाइफ में ही है, ऑर्गेनाइजेशन में भी है कि पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए पहले प्यार से समझाया जाता है, ठीक है ना? पहले सिर्फ एक बार बोल करके ओरल वार्निंग खत्म, ठीक है ना? उसके बाद नहीं मानेंगे तो क्या दिया जाएगा? वार्निंग। उसके बाद नहीं मानेंगे तो क्या दिया जाएगा? मेमो। उसके बाद नहीं मानेंगे तो क्या होगा? सस्पेंशन। उसके बाद भी नहीं सुनेंगे तो डिसमिशन। समझ में आया? टर्मिनेशन। ये होता है। दीज आर द पार्ट ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन। देख लो, चुन लो क्या पसंद है आप लोगों को, राइट? डिसिप्लिन मेंटेन होना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि काम हो सके, ताकि सीनियर की बात जूनियर सुने, राइट? और आप काम करें इन सबऑर्डिनेशन। नाउ इन सबऑर्डिनेशन मतलब कि सीनियर जूनियर को कोई टास्क दे रहा है और वो काम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि काम फिर हो नहीं पाएगा। डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए क्योंकि एक इंडिविजुअल अकेला सारा काम हैंडल नहीं कर सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपको मालूम है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक बॉस ही सारे ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन एक जूनियर को दे रहा है, मतलब a subordinate is not getting, yes, a subordinate is not getting orders from different directions, rather he is getting directions, orders from one senior only, right? Unity of command, right? One boss, one subordinate. And unity of direction, one action, one boss, one plan, right? ठीक है ना? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब जितना भी
डिपार्टमेंट है, जितने भी टीम मेंबर्स है, दे ऑल आर पुटिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, यानी कि एक ही ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, बिग ऑब्जेक्टिव जिसको आप बोल सकते हैं। और उसी बिग ऑब्जेक्टिव को या बिग गोल को अचीव करने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स एक तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी एक डायरेक्शन में सारे एफर्ट्स जा रहे हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के तरफ मूव कर रहा है। राइट, क्लियर है? ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट क्या है? ये किसी व्यक्तिगत इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना। अगर इस क्लास में एक दो बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देने से अगर सारे बच्चे पढ़ पाते हैं तो बेटर है 2 बच्चे को निकाल दो। राइट, बेटर है कि नहीं है? क्योंकि बाकी सबका भला हो रहा है। राइट, मैं किस सिचुएशन की बात कर रही हूँ, आप रिलेट करिए इसको, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में कोई इंडिविजुअल उस जगह से, उस संस्था से बड़ा नहीं होता। राइट, नहीं होता ना। कंट्री में प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री, या कंट्री ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो वो चीज जो कंट्री के बेनिफिट में जाए वो ज्यादा करना चाहिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर के बेनिफिट में जाए। उसी तरह क्लासरूम में वो चीज जो सारे बच्चों के बेनिफिट में चाहिए वो होनी चाहिए। राइट, ना कि एक दो, कोई भी विधायक का बेटा आ गया, राइट, ठीक है, सिर्फ उस पर ध्यान देंगे क्या? नहीं ना। चीफ मिनिस्टर का बेटा आ गया, क्या सिर्फ उसको फोकस करेंगे, उसी को पढ़ाएंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे? ऐसा होगा तो गर्त हो जाएगा, है ना। वो क्लासरूम नहीं रहेगा। समझ में आया? यही चीज ये ऑर्गेनाइजेशन में भी बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी भले ही वो ओनर है, भले ही वो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर है, लेकिन आप किसी व्यक्तिगत इंटरेस्ट को हमेशा सेकेंडरी रखिए, क्योंकि प्राइमरी क्या है? प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन का हित, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का बेहतर होगा, तो ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू ग्रो। राइट, इसीलिए सेकेंडरी है इंडिविजुअल का ग्रोथ, प्राइमरी क्या है? प्राइमरी है ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करके आप ऐसे पॉलिसीज बनाइए जो ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए है। क्लियर हुआ? रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज कहा था आपने। रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए? फेयर, इक्विटेबल, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। राइट, एनीथिंग मतलब रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, कास्ट, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन का माध्यम नहीं, इवन जेंडर, ठीक है ना। जेंडर के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं? अलग अलग तरह का रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। एक तरह का स्किल है, एक तरह का काम है, तो ऑलमोस्ट एक जैसे सैलरी होने चाहिए। राइट, है ना। रेम्यूनरेशन इक्वल, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन यहाँ छूट रहा था जब मैंने बताया था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब all important decisions should be taken at one point, ठीक है, and rest of the decisions should be distributed, scattered throughout the hierarchy of the organization. simple, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर क्या है? ह्यूमन ऑर्डर है या रिसोर्सेस है, फिजिकल रिसोर्सेस है, सभी ऑर्डर में होने चाहिए। यानी कि अभी ऑर्डर में नहीं है तो कितना दिक्कत हुआ प्रेजेंटेशन में। ऑर्डर मतलब सही जगह पे सही स्थिति में नहीं होना, राइट, प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं होना। अगर आपके जो भी रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं, तो भागा दौड़ी जितेंद्र सर को बुला के लाओ, फलाना करो, कुछ नहीं हुआ आप ऐसे ही दे दो, राइट, ठीक है ना। वो इनएफिशिएंट बनाता है आपको। इवन इफ यू आर एफिशिएंट, है ना, तो आपकी इनएफिशिएंट, आपकी मतलब जो आप कर सकते हैं वो भी आप नहीं कर पाते हैं। आप अपने पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर पाइएगा अगर सामान या रिसोर्सेज या मशीन अपने जगह पे प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं रखा जाए तो। सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्सेज अगर ऑर्डर में नहीं हो, यानी कि अगर वो फाइनेंस देख सकता है लेकिन उसको हमने मार्केटिंग में लगा दिया, तो वो अपनी इफिशियंसी को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ? इसीलिए फिजिकल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी इन ऑर्डर, यानी प्रॉपर प्लेसिंग होना चाहिए, राइट। अब ये मूवमेंट के लिए जगह खाली रखा गया, लेकिन इस जगह पे कुछ लाके रख दे तो निकलने में आने में कितनी असुविधा हो जाएगी, स्लो हो जाएगा आपका स्पीड, राइट, ठीक है। स्केलर चेन आपको मालूम है, स्केलर चेन क्या है? एक लाइन में अगर बोलने बोले तो क्या बोलोगे? एक लाइन में, बस एक लाइन यानी एक सेंटेंस। हायरार्की है, बोलिए। वेरी गुड, फॉर्मल पाथ ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच फॉलोज हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक लाइन में अगर बोलने बोले तो दिस फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, स्केलर चेन इज अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, जहां हायरार्की के हर एक लेवल लूप में लेकर के हम आगे जाते हैं, राइट, वेरी गुड। क्लियर हुआ? स्केलर चेन जो नॉर्मल उन्होंने कहा था ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मल सिचुएशन में कैसा होना चाहिए, तो हायरार्की वाइज होना चाहिए, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, लेकिन जिस बीच में जितने भी लेवल्स हैं सबको आप क्या करें, लूप में लेते हुए कम्युनिकेशन करें ताकि ट्रांसपेरेंसी बने रहे
और यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जा सके, क्योंकि सबको मालूम है सी किस चीज में बिजी है, ए किस काम में बिजी है, तो उसको मल्टीपल ऑर्डर्स नहीं मिले, राइट। इसी का एक था कि अगर इमरजेंसी है, कभी कोई चीज बहुत जल्दी पहुंचाना है आपको इंफॉर्मेशन, तो आप क्या कर सकते हैं, आप गैंग प्लैंक मेथड कर सकते हैं, जिसको इमरजेंसी वे ऑफ कम्युनिकेशन बोला था। ठीक है, क्लियर है। इक्विटी, इक्विटी अगेन, इक्विटी यानी कि इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, कैसे हम इक्विटी मेंटेन कर सकते हैं सबऑर्डिनेट को, सिमिलर पॉलिसीज, यूनिफॉर्म प्लान, यूनिफॉर्म रूल्स, यूनिफॉर्म पॉलिसीज, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, राइट। इक्विटी मेंटेन करेंगे तो कहीं कोई आपके अंदर में किसी के अगेंस्ट कोई प्रेजुडिस नहीं होगा, पूर्वाग्रह जिसको हम हिंदी में कहते हैं, यानी किसी से कोई शिकायत, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि उसके साथ डुअल कोई स्केल नहीं यूज किया गया, किसी को एक ही जैसे काम के लिए अलग पनिशमेंट और वही मिस्टेक के लिए किसी दूसरे को अलग तरह का मिस्टेक, अलग तरह का पनिशमेंट, राइट। एक तरह का यूनिफॉर्म पॉलिसीज रूल्स रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि आपके मन में किसी और के अगेंस्ट कोई प्रेजुडिस नहीं हो। ठीक है, समझ में आया। स्टेबिलिटी और पर्सनल भी शायद रह गया था, जो अभी हम लोग काउंट कर रहे थे, तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने 12-13 तो कर ही लिया था, राइट। स्टेबिलिटी और पर्सनल का मतलब है मेक श्योर एम्प्लॉय ज्वाइन देन दे स्टे, ठीक है ना, क्योंकि बार बार लोग आएंगे और जाएंगे, तो आपका पैसा ट्रेनिंग में, रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में खर्चा होगा, लेकिन वो यहाँ सीख करके कहीं और जाके काम करेंगे। तो आप जिसको लेकर के आते हैं, इतनी मेहनत से चुन करके आते हैं, आप ऐसा कंड्यूसिव एटमोस्फेयर क्रिएट करिए कि वो लोग यहाँ रुक करके काम करें। आप उनके लिए वैसा माहौल तैयार करिए कि ज्यादा एट्रिशन यानी कि ज्यादा टर्नओवर एम्प्लॉयज का नहीं हो। टर्नओवर फाइनेंस में दूसरा है, ठीक है ना। यहाँ कब कहने का मतलब है कि वो छोड़ कर ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी जल्दी ना जाए, स्टेबिलिटी मेंटेन करिए। मनीष कुछ पूछना है क्या? टेन्योर, कार्यकाल, ठीक है ना, बोलते हैं ना कार्यकाल, बीजेपी के टेन्योर में, यानी जो भी 8 साल 10 साल के टेन्योर में ये काम हुआ, राइट। टाइम पीरियड, ठीक है, क्लियर है, ओके, उसे को हम टेन्योर बोलते हैं। तो क्लियर है, यानी लंबे समय तक आकर के रुके। स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज जरूरी है। इनिशिएटिव यानी एम्प्लॉयज खुद इनिशिएटिव ले कि हमारे क्लास में कोई इनडिसिप्लिन नहीं होगा, हमारे ग्रुप में कोई इनडिसिप्लिन नहीं होगा। इनिशिएटिव लेना यानी आपके अपनी तरफ से सॉल्यूशन आना चाहिए किसी प्रॉब्लम का, समझ में आया। एम्प्लॉयज के साइड से सॉल्यूशन आना चाहिए किसी प्रॉब्लम का, ना कि हर बार मैनेजमेंट को सॉल्यूशन देना चाहिए और उनको करने देना चाहिए। इनिशिएटिव, हर एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज को इतना इक्विप्ड करना चाहिए, इतनी ज्यादा उनको अथॉरिटी और फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो इनिशिएटिव लेकर के किसी प्रॉब्लम का हल कर सके। क्लियर है, तो आपका यू आर सॉर्टेड। अगर ऐसा हो गया तो मैनेजर इज सॉर्टेड, यानी उसको फिर कोई कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कैन फोकस ऑन देयर ओन वर्क, राइट। एंड नेक्स्ट है स्पिरिट डिकॉप्स, यानी कि टीम स्पिरिट के साथ काम करना। ऑलवेज ऑर्गेनाइजेशन में गिव्स क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम, ठीक है ना, डोंट टेक द क्रेडिट ऑफ योर ओन। अगर सक्सेस है तो आपका है, अगर फेल्योर है तो बाकी टीम का है, ऐसा मत करिए। फेल्योर भी है तो सबका है, सक्सेस भी है तो सबका है, राइट। तो इस तरीके से काम करेंगे, पीपल विल बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, राइट। दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, राइट। इसके बाद ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट पढ़ा, अभी उन लोगों ने रिवीजन करवाया है, अगर तब भी कुछ डाउट रह गया तो पूछो। यस, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट पे ही अभी प्रेजेंटेशन हुआ, ये तो मालूम है, ठीक है। तो उसमें कोई डाउट है? डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो डाउट देख लेंगे, ठीक है ना। एंड डोंट वरी, मैं अगर बोल रही हूँ कि सैटरडे तक है, तो सैटरडे तक एक्चुअली मैं आपको प्रेजेंटेशन का टाइम दे सकती हूँ कि सैटरडे तक प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, लेकिन हम उसके बाद अगर नहीं होगा तो मैं ऑनलाइन क्लासेस 2-4 अगर तुम लोगों को जरूरत अगर होगा तो, ठीक है ना, ये जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको जरूरत होगा, रिवीजन क्लासेस की जरूरत होगी, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, रिवीजन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में भी, ठीक है, अगर ऑफलाइन में नहीं हो पाएगा तो। क्या मेरा क्लास अब सीधा मंडे को है? फ्राइडे के बाद मंडे नहीं होगा, अब नीतीश सर लेंगे, क्योंकि उनका कोई क्लास लगा आप लोगों में जो शायद नहीं हुआ है कंप्लीट, तो नीतीश सर लेंगे अब क्लासेस, ठीक है। कोई तो वो लेंगे क्लास,
मैंने उनको बोल दिया कि मैं सैटरडे तक जो भी होगा वाइंड अप कर दूंगी। अगर तब भी लगेगा, इफ यू टेल मी कि अगर कुछ रिवीजन चाहिए मैम, 4-5 क्लासेस चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करके ऑनलाइन क्लास लगवा लूंगी, ठीक है ना। अब अटेंडेंस ले लेते हैं। पीछे मैम पीपीटी प्रेजेंटेशन मैम ऑफलाइन में ही आकर मतलब करना है, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। अभिषेक, कृत, डोंट टॉक। पीछे किसी को बात भी मत करने दो, तुम भी मत करो, एंड डोंट अलाउ एनीबॉडी टू टॉक। ओके, टुडे इज 20। ओके, 1 2 Yes, ma'am. 3 Yes, ma'am. 3. 4 Yes, ma'am. 4. 5 6 7 8 Yes, ma'am. 8. 9 10 Yes, ma'am. 10. 11। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। 10 11 12 Present, ma'am. 13 14 Yes, ma'am. 14. 15 Present, ma'am. 16 17 Present, ma'am. रविराज कुछ बोलो। यस मैम मैं रविराज कुछ आवाज नहीं आ रही है मुझे। Ma'am. आप लोगों की कुछ आवाज नहीं आ रही, आप लोग बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे समझ में नहीं आ रहा मुझे। आवाज क्लियर नहीं है। रविराज, यस मैम। ठीक यस है, मैम मैं रुको, ठीक है। 8 तक कोई है क्या? मैंने 8 का बना दिया है क्योंकि आई सॉ Yes, ma'am. 8. 1। मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, 2 3 4, एक्चुअली ये यहाँ लगा है ना, 5 6 7 8 Yes, ma'am. 8. 9 10 Yes, ma'am. 10. 11 12 13 14 Yes, ma'am. 14. 15 Present, ma'am. 15. 16 17 Present, 18 ma'am. 18 19 यस मैम 19 20 21 Ma'am. 21. 16 है क्या क्लास में? 16 No, है ma'am. क्या? नहीं ना, ठीक है। 22 Ma'am. 23 Present. ओके, 23 24 Present, ma'am. 24. 25 26 27 ma'am. 27 28 Yes, ma'am. 29 30 31 32 33 34 35 Yes, ma'am. 36 37 38 39 39 present, ma'am. 40 41 Yes, ma'am. 42 43 44 Yes, ma'am. 45 Yes, ma'am. 44. 46 Yes, ma'am. 47 47 48 49 50 मैम 49 मैम 50 ma'am. 50 51 50 ma'am. 52 Ma'am. 48. Ma'am. 48. 53 54 Present, ma'am. 55
Yes, ma'am. 55. 56, 57, 58, 59, 59 60. present, ma'am. 60, 61, 62, 63, 64, 63 हो गया, 65, Yes, ma'am. 66, 65. Ma'am, 65. 67, done. 68, 69, 70, 71. Yes, ma'am. 70. मैम 72 69 का कनेक्शन हट गया है, सब बना ओके दीजिए। ठीक है 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82, 82 मैम 83, 84, 85, 86, 87, 87 अभी रुको 2 मिनट 87, प्रेजेंट मैम 88, Present, ma'am. 89, 90 88 present, ma'am. हो गया 90, 91, 91, 92, 93, 94, यस मैम 94 95, 96, यस मैम 96 97, 98, 99, 100, यस मैम 100 101, 102, 103, 104. That's it. 104 present, ma'am. 104, ma'am. Ma'am, 104. अभी रुको किधर जा रहे हो? हाँ 104 मैंने सुन लिया 84 छूट गया था 82 मुझे जाने दो Ma'am, 59 बनेगा क्या? मुझे पहले मुझे जान दो मैंने किसी को अलाउ नहीं किया अभी पूछो Ma'am, फैजल को ही किया तो अभी तक वापस नहीं आया ना उसको एब्सेंट मार्क करते यस मैम 50 चेक लीजिए। यस मैम 50 को चेक कर लेती। कितना 50 50 मैम 59 हो गया क्या मैम? सबका हो चुका है तुम लोग को इतना डाउट क्यों होता है हो चुका है ठीक है रखिए 50 तुम्हारा भी हो गया था